Hello friends, let's move to the another important division, that is pteridophyta. Okay, in the previous parts we have covered about bryophyta. Now when we talk about pteridophytes, of course the plants belonging to division pteridophyta will be pteridophytes. They are also referred as vascular seedless plants. Of course, seed is not present, embryo is not present, but what is then the vascular system is present. Okay, so actually pteridophytes are the first vascular plants. Vascular cryptogams is another name. As far as bryophytes are concerned, they are non-vascular cryptogams, non-vascular seedless plants, but these are vascular, okay, and cryptogams as well as seedless plants. So the first vascular plants developed on earth during the course of evolution are pteridophytes. And now if we will take a look of the classification, kingdom Plantae, of course, clade is Tracheophyta, okay, and in that the division is pteridophyta. Clear? Now these are the first vascular plants which we have just seen, and they are evolved from bryophytes. ठीक है, तो bryophytes non-vascular थे and these are vascular. Now we have found many fossil records of many such plants which are found to be an intermediate of bryophytes and pteridophytes. और fossil records से पता चला है ऐसे कई plants थे intermediate and they are now extinct. और इस ऐसे एक phylum है जो आज एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, लेट मी मेक इट क्लियर. एंड दैट फाइलम इज फाइलम राइनोफाइटा. ओके, एंड अ प्लांट इन इट, क्लियर, वन ऑफ द एग्जांपल इन इट इज कुक्सोनिया, which shows characteristics of both bryophytes as well as vascular plants. So they are actually intermediates. In these plants, vascular system was found to be present, but not a very well developed. Then these are homosporous, showing most of the characteristics like shade and moisture loving plants like bryophytes, short plants, but they are having vascular system. Okay, and that's why they are found to be intermediate during the course of evolution from bryophytes. जब pteridophytes बने तो ये एक ऐसा फाइलम है, okay, जो intermediate था कभी. Okay, now mostly clear pteridophytes are homosporous, मतलब दो टाइप के स्पोर्स नहीं बनने वाले, एक ही टाइप के स्पोर्स बनेंगे, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस भी है. तो इन हेट्रोस्पोरस में माइक्रोस्पोर बनेगा और मेगास्पोर बनेगा. माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू मेल गमेटोफाइट प्लांट एंड मेगास्पोर विल डेवलप इनटू फीमेल गमेटोफाइट प्लांट. ओके, बट मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट? मोस्ट ऑफ देम आर होमोस्पोरस. ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर जो कैरेक्टरिस्टिक इनका वो है ये कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, जबकि ब्रायोफाइट में हमने देखा था गमेटोफाइट वाज डोमिनेंट. इवन ये जो इंटरमीडिएट से इनमें भी स्पोरोफाइट वाज फाउंड टू बी डोमिनेंट. अब रूट, स्टेम और लीव्स क्लियर कट दिख रहा है, तो क्या आप उसको थैलस कहेंगे? नहीं. थैलस इज दैट प्लांट व्हिच cannot be differentiated into root, stem and leaves. But here you can clear cut distinguish this dominant sporophyte plant into root, stem and leaves, and इसीलिए sporophyte को हम लोग thallus नहीं कहते. यहां आप देख सकते हैं ये उसका sporophyte plant है जिसमें clear rhizoids जो roots जैसे है differentiate हम लोग कर सकते हैं. underground stem है rhizome, इसकी aerial branch है और कई और aerial branches आपको दिखाई दे रही है. ये actually leaves नहीं है, these are aerial branches. Okay, and aerial stem भी है ऊपर उसके, क्लियर, स्ट्रोबिला है. ओके, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं डिटेल में. बट आपको दिख रहा है ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट है, जबकि गमेटोफाइट प्लांट इसका ये है व्हिच इज हैप्लॉयड गमेटोफाइट प्लांट. ओके, और आपको दिख रहा है वो कैसा है, वो अनडिफरेंशिएटेड. तो गमेटोफाइट को मैं थैलस जरूर कह सकता हूं, बट नॉट द स्पोरोफाइट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. नाउ रूट्स are mostly adventitious. अब adventitious मतलब क्या? fibrous root system.
कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम इनमें जनरली नहीं मिलती। एक आध दूसरा एक्सेप्शन हो सकता है, बट मोस्टली क्लियर इनमें कोई बहुत टैप रूट सिस्टम जैसी स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम नहीं होती। इट्स अ वेरी वीक रूट सिस्टम, क्योंकि इन प्लांट्स का भी साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है। स्टेम मोस्टली अंडरग्राउंड और एरियल। अंडरग्राउंड स्टेम उसको हम लोग राइजोम भी कहते हैं, ये जमीन के अंदर होता है, ओके, या एरियल स्टेम्स आर आल्सो फॉर्म। लीव्स, टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर ऑब्जर्व्ड, ओके, माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। फिल्स मतलब होते हैं लीव्स, माइक्रोफिल्स मतलब विच आर स्मॉल लीव्स, मेगाफिल्स मतलब बड़े लीव्स, ओके। माइक्रोफिल्स इतने छोटे होते हैं कि इनमें जाइलम और फ्लोएम का एक सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होता है, ओके, मतलब उनमें बहुत ज्यादा वैस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे, अ सिंगल वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट। व्हाइल मेगाफिल्स विल हैव मेनी बंच ऑफ, ओके, वैस्कुलर बंडल्स। तो मेगाफिल्स में जनरली वैस्कुलर बंडल ज्यादा होते हैं और माइक्रोफिल्स का लेस। नाउ amongst pteridophytes there are four main phyla, okay. The first is phylum Lycophyta, जिसको हम लोग club mosses भी कहते हैं। क्यों mosses? कुछ कैरेक्टरिस्टिक मॉस जैसे है इसीलिए, ओके। इफ यू रिमेंबर मॉस से ही, ब्रायोफाइट से ही ये मॉडिफाई होके बने हैं, ओके, एंड दैट्स व्हाई क्लब मॉसेस। सेकंड phylum Spinophyta, जिसको हॉर्स टेल्स या फर्न एंड एलाइज कहा जाता है। मतलब क्या? एलाइज मतलब रिलेटेड, फर्न के रिलेटिव्स है, ओके। फाइलम साइलोफाइटा, इसमें पी साइलेंट है, ओके, साइलोफाइटा एंड विस्क फर्न्स इनको कहा जाता है। एंड फाइलम टेरोफाइटा जो एक्चुअली जिसमें फर्न आते हैं। और ये भी क्लियर कर दूं, आज सबसे एडवांस्ड जो है वो है फर्न, ये सबसे एडवांस्ड है। आज सबसे ज्यादा टेरिडोफाइट्स फर्न है। तो ये फाइलम लाइकोफाइटा है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले, जब पहला टेरिडोफाइट डेवलप हुआ तो इट इज फाइलम लाइकोफाइटा, ओके, क्लियर। क्लब मॉसेस वेरी डेवलप्ड। एंड जैसे से हम आगे जाएंगे स्पिनोफाइटा, साइलोफाइटा एंड टेरोफाइटा। टेरोफाइटा मतलब ये सबसे एडवांस्ड है आज सबसे ज्यादा, क्लियर, हमें जो टेरिडोफाइट्स मिलेंगे वो ये है, क्लियर। लेट्स मूव टू द मोस्ट प्रिमिटिव लाइकोफाइटा, okay. Now one important thing, 400 million years ago these plants were much bigger. ये सारे प्लांट्स जो आज बहुत छोटे दिख रहे हैं वो आज से 400 मिलियन एगो, क्लियर, ईयर्स एगो, जब ये बहुत बड़े थे, क्योंकि उस वक्त का एनवायरनमेंट वाज सच दैट इट वाज सपोर्टिंग देम एंड दैट्स व्हाई these plants were, clear, going to flourish at that time. But today, clear, we are well familiar, angiosperm are the most advanced one and pteridophytes इतने advanced आज नहीं है. That's why. Let's move to the first, the most primitive pteridophytes, that is phylum Lycophyta, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं club mosses, ओके। इनको ग्राउंड पाइन्स भी कहा जाता है लोकली कई जगहों पे, ठीक है ना। Primitive pteridophyte, those the first pteridophyte, then common in moist woodlands of temperate zones. तो टेम्परेट जोन्स में भी है, लेकिन जो मॉइस्ट वुडलैंड्स है उनके जैसे। इसका मतलब ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है जो उनको मॉस करने के लिए, क्लियर, हमें ये करता है, ठीक है। ब्रांचिंग राइजोम मींस राइजोम्स आर हैविंग ब्रांचेस। राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम। हॉरिजॉन्टल स्टेम्स आर प्रेजेंट एंड दिस स्टेम्स एरियल स्टेम लेस देन 30 सेंटीमीटर। मतलब इस प्लांट की हाइट 30 सेंटीमीटर की छोटा है, क्लियर, लेस देन 30 मींस दीज आर लाइक श्रब्स, नॉट, क्लियर, क्वाइट हाइटेड प्लांट। अब देखिए ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम है राइजोम, और इससे ये एरियल ब्रांच निकली है ऊपर, ओके, और इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। स्केल लीव्स, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इन प्लांट्स के पूरे बॉडी के ऊपर स्केल लीव्स होते हैं, ओके। तो स्केल लीव्स मतलब विच आर albeit like spines, इसीलिए ये प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। दे मोस्टली माइक्रोफिल्स आर सीन, इसमें लाइकोफाइटा में माइक्रोफिल्स आर सीन। आपको दिख रहा है ये माइक्रोफिल्स है, दीज आर द माइक्रोफिल्स, छोटे छोटे लीव्स, और ऊपर
भी माइक्रोफिल्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होंगे, उसके साथ साथ स्केल लीव्स आर आल्सो प्रेजेंट। ओके, और स्केल लीव्स रहने के कारण द प्लांट विल गेट प्रोटेक्शन। ओके, नाउ स्पोरोफिल्स आर आल्सो प्रेजेंट। क्या है स्पोरोफिल? माइक्रोफिल्स, स्मॉल लीव्स, मेगाफिल्स, कंपैरेटिवली बिगर लीव्स, इनमें नहीं है मेगाफिल्स, ओके, बट आगे के प्लांट्स में हो सकते हैं। बट स्पोरोफिल्स, अगेन इसमें भी फिल लगा है, इसका मतलब ये भी लीव्स ही है, करेक्ट, बट दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। स्पोरोफिल्स वो लीव्स है जिनके सरफेस पे स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, ओके, एंड स्पोरोफिल्स आर ग्रुप्ड, एक स्पोरोफिल, दूसरा स्पोरोफिल, तीसरा स्पोरोफिल, ऐसे स्पोरोफिल ग्रुप बना लेते हैं, एक बंच बनाते हैं, और ये सारे स्पोरोफिल एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं। और मैंने क्या कहा आपको, हर स्पोरोफिल के सरफेस पे स्पोरेंजिया है, मेनी, एंड एवरी स्पोरेंजिया विल हैव स्पोर्स। सो इनमें ऐसे क्लब हो गए हैं। कौन क्लब हुए हैं? क्लब हुए हैं स्पोरोफिल्स, एंड दैट्स व्हाई, क्लियर। और ये क्लब ये ऐसा दिखता है जैसे कि स्ट्रॉबिला है। स्ट्रॉबिला का मतलब होता है कोन्स, ओके। अब ये देखिए आप, स्ट्रॉबिला जिसका मतलब कोन्स है, क्या है? अगर मैं उसको ओपन करूं तो आई विल फाइंड मेनी स्पोरोफिल्स इनसाइड इट, एंड हर स्पोरोफिल के ऊपर मेनी स्पोरेंजिया विद मेनी स्पोर्स, एंड इसीलिए इनको क्लब मॉसेस कहा जाता है, बिकॉज इन देम द स्पोरोफिल्स आर क्लब्ड टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रॉबिला, ओके। ऐसे कोन्स दिखाई देंगे, क्लियर, लेकिन ये हमेशा टॉप पे होंगे, बीच में कहीं नहीं लगेंगे, ओके। नाउ मेनी आर एपिफाइट्स। नाउ व्हाट आर दिस? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एपिफाइट्स मतलब वो प्लांट्स जो दूसरे बड़े प्लांट्स के ऊपर जाके रहते हैं, ओके, क्लियर, मींस दे कांट डेवलप इन द सॉइल, ओके। तो इफ वी हैव अ बिग मैंगो प्लांट और मैंगो ट्री, तो इसके ट्रंक पे आपको मेनी टाइम्स यू विल फाइंड प्लांट्स लाइक दिस, एंड दिस विल डेवलप टू टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट, those roots which will go inside this stem and hold the stem properly, and second type of roots are hanging roots. These hanging roots are also called epiphytic roots, and that's why they are called epiphytes. और ये दूसरे प्लांट के ऊपर जाके बैठ रहे, so that they should receive more light, okay. They are not parasitic, they are not going to affect the plant in any way, only support, that's it. Support is the only aim of them, and that's why they won't absorb water or nourishment, but being green they will show photosynthesis, लेकिन photosynthesis के लिए तो water चाहिए. If they are not going to absorb the water from the stem, how they are going to show photosynthesis? Clear? They are going to show photosynthesis because they have hanging roots, and hanging roots have specialized tissues called velamen tissues, and these velamen tissues absorb water from air, okay. तो एयर में से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, एंड दैट इज सप्लाइड, एंड द प्लांट शो फोटोसिंथेसिस. सो द प्लांट इज नॉट पैरासिटिक, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट जस्ट फॉर सपोर्ट, ओके. एंड इनके जो सीड्स रहते हैं वो सीड्स एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई सीड्स या स्पोर्स जो भी है, एंड इस किसी भी बड़े स्टेम पे जब कोई क्रैक है जहां बारिश में पानी इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे these seeds will go and germinate these plants, okay. These are what? These are epiphytes. Such many epiphytes you will find if you will go for a jungle safari, okay. Such at that time you will find many such epiphytes, okay. Please observe it properly. Now, so not all, some are epiphytes, okay. Many epiphytes are there. Epiphyte is a common name, but actually many epiphytes are found in this phylum Lycophyta, okay. Now, homosporous means same type of spores, but
in this, amongst phylum Lycophyta, we have two or some other might be there, but certain common examples are Selaginella and Isoetes. ये दो ऐसे प्लांट है which show what? Which show heterosporous condition. Otherwise, maximum plants are homosporous. Okay. Now, let's take a look of the plant life cycle. Okay, you can see this is how the sporophyte will look like. तो आपको दिख रहा है sporophyte बड़ा है. Sporophyte will catch your attention. Gametophyte दिखाई भी नहीं देगा. That's why sporophyte is dominant. Look at it. Underground stem है, उसमें rhizoids आए हैं. Stem underground है तो it itself will absorb as well as fix the plant. Clear? And other than that, of course, this will be your soil level. आपको दिख रहा है microphyll से यहाँ पे. Underground stem is called rhizome and microphyls are there. And other than microphyls, scale leaves are also there. Okay? Clear? And of course, आपको ये दिख रहा होगा बड़े-बड़े green in shape. We call these as branches. These are not leaves. They don't show the characteristics of leaves. They are branches actually. Okay? Which are originated from the aerial stem. जो ऊपर aerial stem आया उससे originated हो रहा है. तो leaves के characteristic नहीं है, इसलिए उनको leaves नहीं कहा जाएगा. Okay? Other than that, you can see ऊपर के side में strobila develop है. Okay? अभी भी हमने देखा strobila is bunch of many what? Sporangia. Many sporophylls. And sporophyll is a bunch of many sporangia. Or on the surface of sporophyll you find many sporangia. Sporangia will develop spore mother cell which is diploid because the whole plant is diploid. So spore mother cell will also be diploid. And that will undergo what? It will undergo meiosis. And after meiosis, of course reduction division, it will form spores. And the spores in this case, Lycopodium, जो हम लोग इसका एग्जांपल दे रहे हैं, या इसके मैक्सिमम एग्जांपल्स एक्सेप्ट सेलेजिनेला और आइसोएट्स, इनको छोड़ दिया जाए तो ऑल अदर आर व्हाट? होमोस्पोरस. स्पोर्स आर रिलीज एंड दे विल जर्मिनेट. तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट. मतलब गमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है. गमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है. वो छोटा सा घर बनाएगा लेकिन खुद का, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. बट दिस इज द गमेटोफाइट व्हिच इज वेरी स्मॉल, अ फ्यू सेंटीमीटर इन लेंथ. ये एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर तो भी है. इट्स अ फ्यू सेंटीमीटर इन लेंथ एंड हैप्लॉइड. एंड इन दिस gametophyte you can see antheridia are developed. Of course the whole gametophyte is haploid, so antheridia which are developed are also haploid. Archegonia on the other side, and of course it's a thallus type. Why thallus? Reason, no root stem use. We have albeit rhizoids but not very well developed. Archegonia are there. Okay, haploid. Antheridia will show mitosis to form sperms, and you can see the sperms have flagella. They are biflagellated. Similarly, the Archegonia will through mitosis will form egg because these are haploid, and that's why the cells which are formed are also haploid and they are formed by mitosis. Of course, water is essential. तो जब बारिश होगी, ये तो a few centimeter in length, तो बारिश होगी तो automatically पानी भर जाएगा, and in that the antheridia will burst releasing the sperms and the sperms will swim and move up to the egg. इनमें कुछ स्पेसीज में कीमोटैक्सिस मिला है. A few species. Okay, कीमोटैक्सिस, if you remember, कुछ वेजिटेटिव सेल्स हैं जो बर्स्ट होके अपना मटेरियल रिलीज कर देंगे and because of that sperms यहां तक अट्रैक्ट होंगे. लेकिन सभी स्पेसीज में ये नहीं मिला है. Okay, then sperms will migrate, they will show fertilization, fusion होगा to form zygote. Zygote is diploid. Zygote is diploid. And this diploid zygote which is formed, कहां फॉर्म हुआ? जहां पहले आर्किगोनिया था, जहां पहले एक सेल था, वहां पे. And now what will happen? This zygote will show continuous mitosis. क्योंकि zygote diploid है तो वो continuous mitosis दिखाएगा और उससे यहां जर्मिनेट होना शुरू हो गया एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट. ओके, अभी आप स्पोरोफाइट में देख सकते हो डेवलपिंग स्पोरोफाइट है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रोबिला भी डेवलप होना शुरू हो चुके हैं.
But here, sporophyte during the initial stage will absorb nourishment from the gametophyte. हालांकि वो gametophyte कुछ देर बाद दिखाई नहीं देगा, कुछ दिनों बाद, क्योंकि स्पोरोफाइट इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा नरिशमेंट उसने कब का एब्सॉर्ब कर चुका है. तो दो sporophyte is dominant, but still the sporophyte during initial stages of development are dependent on the gametophyte, but gametophyte is independent. ये इसके लाइफ साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ Lycopodium. Lycopodium is one of the clear well-known examples of the phylum Lycophyta. Club mosses. Club because sporophylls are clubbed to form strobili or cones. Okay, that's why. And अगर हम लोग इस लाइफ साइकिल को ठीक से देखें तो स्पोर मदर से जैसे मियोसिस दिखाएगा आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा. इसके ऊपर का हो गया स्पोरोफाइट जनरेशन which is diploid sporophyte generation. And यहां से शुरू हो गया gametophyte. And इसके बाद जहां zygote formation हुआ, मतलब fertilization हुआ, okay, वहां तक आपका gametophyte रहेगा. So this is your what? This is your gametophyte. Okay? And gametophyte generation is haploid gametophyte. And again zygote जैसे बना sporophyte generation start. But कौन सा प्लांट डोमिनेंट है? कौन सा प्लांट बड़ा दिखाई दे रहा है? Sporophyte. That's why sporophyte is dominant. ऑल्सो क्लियर, आपको दिख रहा है स्ट्रॉबिलाई में जो स्पोर्स लगेंगे वो एक ही टाइप के हैं, उसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन जब ये गैमेटोफाइट डेवलप होगा तो उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइकोपोडियम. थैंक यू.